Now converting from binary to decimal. So from converting binary to decimal, we have to use the power rule. That is, like, this is the number, you can see this is the number. हमने इस नंबर को पावर उस पर करना है, तो हम इस नंबर को कैसे करेंगे? जैसे if we are doing binary to decimal, that is 2 3 raised to power 3 into 2 raised to power 0 plus 8 into 3 raised to 8 into 2 raised to power 1, likewise, and then we will add all these. By adding all these we will get the answer. इस तरह हम बाइनरी से डेसिमल में जा सकते हैं. इसके बाद आ जाता है converting from binary to decimal. Now, just like this, we have to convert 11001 to decimal. So we will just use the power rule and we will multiply. Then there goes hexadecimal. Hexadecimal is also called base 16. It is also called computer literature, and it is a convenient representation of binary numbers. जिसने यहाँ पे आप देख सकते हैं zero and the binary numbers is 4-digit number, 4 bits. After 9 it starts from alphabetical orders A, B, C, D, E, F. So 10 is A, 11 is B in hexadecimal. Here goes the example. इसमें हमने बाइनरी को हेक्सा में किया है, तो हम 4 डिजिट बिट्स को लेके हम देखेंगे. जिसे 1010 इट्स 4 बिट्स. हम इसको टेबल में देखेंगे. वेयर इज 1010 इज 5 इन हेक्सा, so we will write it as 5. Then 41 is F in hexa and 1001 is 9 in hexa. Then the answer is our 9F5 in hexadecimal. If we have to convert hexadecimal numbers to decimal, अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर्स को डेसिमल में करना चाहें तो हम पावर रूल यूज़ करेंगे और उस नंबर को, जैसे कि पहले हमने बाइनरी को डेसिमल में किया था, उसी तरह हम हेक्साडेसिमल नंबर्स को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर आ जाती है एडिशन ऑफ बाइनरी एंड हेक्सा नंबर्स. You can see how to add these. In binary numbers, 2 is 0 1. Like if in normal numbering system 1 plus 1 is 2, but in binary numbers, if in binary numbers 0 1 is 2. In binary numbers 0 1 is 2, so we will write, if we have to add 1 1, so we have to write 0 and there will be the carry, that is 1. Now there is 2's complements. So let me tell you first what is 1's complement. 1's complement is just like there is 1 0 0 1. हमने इसको 1's complement में चेंज करना है. 1's complement वही हो जाएगा, जो 1 है उसको हम 0
कर देंगे, लिख लेंगे 1 को हम 0, 0 को 1, यानी कि जो नंबर होगा उसको हम इन्वर्ट कर देंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टिंग। जैसे कि अगर हमने इसको 1's कॉम्प्लीमेंट में करना है तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा 0, 1, 1 एंड 0। अगर हमने किसी को 2's कॉम्प्लीमेंट में करना है तो पहले हम उसको 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उस 1's कॉम्प्लीमेंट को हम 1 के साथ ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन दिस 1, 1, 1 and 0. This is our 2's complement in this. Then it goes the addition and subtractions of hexa numbers. जैसे हमारी नॉर्मल एडिशन होती है वो हमारी डेसिमल एडिशन होती है, इसी तरह हमारी बाइनरी में उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। जैसे लाइक आप एक नंबर ले लो, हम नंबर एक ऐड कर रहे हैं 13 + 9 जो कि हमारे पास है 22। इसी तरह अगर हम इसको बाइनरी में करेंगे 3 हमारे पास, तो हम फर्स्ट लेके करेंगे तो 3 हमारे पास 3 and 9. What is 3 and 9? 3 and 9 is 12. In this 2 is our remainder and 1 is our carry. इसी तरह हमारा इसमें भी यही आना चाहिए। थ्री बाइनरी में 1 1 0 1 1 0 0 होता है और 9 1 0 0 1 होता है। वन वन ज़ीरो and 1 0 0 1. Let me check if it is right or not. It's 0 0 1 and 0 0 1 1 and 1 7. Zero, 0, 1 1, 1 0 0 1. So we will add 1 plus 1 is 2, that is 0 and 1. 1 plus 1 2 again, 0 and 1. Here goes 1 and then 1. 1 1 0. 1 1 0 is not actually 1 1 0. If we have to check, it's not making 2. It's not making 2, then we will add 6 to make 2. 6 is 0 1 1 0. We will add 0 1 1 0 in this with this. हम इसके साथ 0 1 1 0 इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो बेसिकली 2 आना चाहिए, जो कि हमारे पास आंसर नहीं आ रहा। तो इसको हम लाने के लिए हम 6 से ऐड करते हैं 0 1 1 0. दिस इज़ द रिमाइंडर, जो कि दो कैरी यहाँ पे हमारे पास कैरी आ रहा है। ये हमारा जो 1 कैरी था वो हमारा दूसरे में चला जाएगा, यहाँ पे हमारा आ रहा था, तो इसी तरह ये हमारा 2 बन गया। इसी तरह हम नेक्स्ट एडिशन करेंगे जो कि हमारे पास यही आ जाएगी।
देन एडिशन ऑफ हेक्सा नंबर्स, एडिशन ऑफ हेक्सा नंबर्स भी उसी तरह होगी। हमारे पास ASCII कोड्स आते हैं। ASCII कोड्स आर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ASCII कोड्स बाइनरी पैटर्न्स को असाइन होते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स हैं, वो अपर केस, लोअर केस, इन सब के एक नॉर्म कोड्स होते हैं जस्ट लाइक दिस। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ABCD XYZ, इनको हम इसमें चेंज करते हैं अपने बाइनरी में। देन हमारे पास सेक्शन 2 आता है, डिजिटल प्राइमर। डिजिटल प्राइमर, इसका फर्स्ट टॉपिक है बाइनरी लॉजिक। बाइनरी लॉजिक एक सिस्टम है, उसको हम जैसे कि पता है हमें कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज जानता है। तो इसी तरह अगर हमें कोई चीज़ ऑन करनी है तो कंप्यूटर लैंग्वेज उसमें 1 को करेगा, 1 को फॉलो करेगा। अगर हमें किसी चीज़ को ऑफ़ करना है तो हम 0 यानी कि ऑफ़, हम 0 के थ्रू ऑफ़ करेंगे। इसी तरह अगर कोई सिस्टम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमें सिग्नल्स देने तो 0 से लेके 1 तक, जो भी 0 से लेके 1 वोल्ट्स तक सिग्नल्स जो हैं वो 0 लॉजिक रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह 3 से लेके 5 तक, जो अगर जैसे हमें एक वाटर लेवल इंडिकेटर बनाना है तो वाटर लेवल इंडिकेटर को हम ये बताएंगे कि जब 0 से 1 वोल्ट्स के दरमियान हमारी जो वोल्टेज हो तो वो ऑफ़ हो जाए और वो इंडिकेट ना करे। बट अगर 3 से 5 वोल्टेज तक वो जा रहा है तो वो ऑन हो जाए और वो इंडिकेट करना स्टार्ट कर दे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉजिक गेट्स। कंप्यूटर लॉजिक गेट्स, एंड गेट 2 नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एंड गेट होता है। जैसे कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हम लें, जैसे x एंड y है, हम उनको जो ऐड करके जो मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी आउटपुट होगी। ये उसका सिंबल है। देन इसके बाद और गेट आता है, कोई भी 2 इनपुट्स को या 2 से ज़्यादा इनपुट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो आउटपुट देता है वो हमारे पास और गेट होती है। बफर में बफर गेट डज नॉट चेंज द लॉजिक लेवल्स ऑफ इनपुट। ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होता है। इन्वर्टर जो है वो, इन्वर्टर को हम नॉट गेट भी कहते हैं। ये अगर 0 है तो 1 हो जाएगा और अगर 1 है तो हमारी आउटपुट 0 हो जाएगी। इसी तरह जोर गेट्स हैं, जोर गेट्स और वी कैन से एक्सक्लूसिव ऑफ और गेट। अगर 2 डिफरेंट होंगे तो वो 1 आउटपुट देगा, अगर 2 सेम होंगे तो वो 0 आउटपुट देगा। लाइक अगर 1 1 है तो वो 0 आउटपुट देगा, लाइक विद 0 0 है तो 0 आउटपुट देगा। बट अगर 0 1 है या 1 0 है तो वो 1 आउटपुट देगा। When NAND gates and NOR gates are there, then these are the AND gate inverters of AND gate and OR gate. अगर 2 इन AND gate अगर 2 को प्लस करने से AND gate में अगर 2 को AND gate में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे अगर आंसर 1 आता है तो उसका इन्वर्टर जो होगा वो 0 देगा। Logic designs using gates. These are the implementations of half adder. Half adder carry and sum के थ्रू हम हाफ एडर बनाते हैं। अच्छा, कैरी एंड सम का भी ऑल नो हमें पता है कि जब हम 0 को प्लस करते हैं 0 से तो हमारा आंसर 0 आता है, हमारे पास कोई कैरी नहीं होता। इस तरह हम 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास कोई कैरी नहीं होता। 1
इसका सिर्फ आंसर होता है। अगर हम 1+1 को ऐड करें बस आता है 0 and 1. 0 is our sum and 1 is our carry. कैरी चला जाता है ना, तो ये अब हम हाफ एडर बनाते हैं ज़ोर एंड एंड गेट के थ्रू। सम के हमारे पास इक्वेशन बनती है x ज़ोर y, x ज़ोर y। इसी तरह कैरी की हमारे पास इक्वेशन बनती है x एंड y, x एंड y। और अगर हम एंड और इन्वर्टर्स के थ्रू से बनाएं तो हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस बनती है। फिर ये जो हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं इनको हम के मैप के थ्रू सॉल्व करते हैं और अपनी इक्वेशंस बनाते हैं। इसमें एक x इनपुट दी जा रही है और एक y इनपुट दी जा रही है, और हाफ एडर में और सम और कैरी हमारे आउटपुट्स हैं, इनकी जो इक्वेशंस होंगी। इसमें नोट दैट व्हेन वी ऐड 1+1 वी गेट 0 विद अ कैरी टू द नेक्स्ट हायर प्लेस। ये जो पीछे हमने इक्वेशंस की हैं कि अगर हम 1 को 1 से ऐड करते हैं तो हमारे पास कैरी आता है 1 और हमारे पास सम आता है 0। दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। इसके बाद the half adder is the 2-bit game and full adder is 4-bit 3-bit 3-bit। ये एक एडर जो है वो एक फुल एडर जो है वो 2 हाफ एडर से मिलके बनता है। इसी तरह इसमें भी इसी तरह है, और 2 हाफ एडर को हम ऑन और कर देते हैं तो वो हमारा फाइनल आंसर होता है। इसके बाद फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा। उसके फ्लिप फ्लॉप्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि डी फ्लिप फ्लॉप, के फ्लिप फ्लॉप, जस्ट लाइक दैट। इसमें ये सर्किट है, ये क्लॉक है जो जिसको हम ट्रिगर के साथ ऐड कर देते हैं। डी हमारी इनपुट है एंड क्यू हमारी आउटपुट है, और क्यू बार हमारा इन्वर्टर है। इसी तरह ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है और ये उसका ट्रुथ टेबल है। नाउ दिस इज सेमीकंडक्टर मेमोरी सेक्शन। कंप्यूटर जो है वो जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें ऑब्वियसली मेमोरी सेव होती है। इस सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी सेव कैसे रहती है, कंप्यूटर की कितनी टाइप्स की मेमोरीज हैं, और बिट्स बाइट्स क्या होता है। ये एक टेबल है जिसमें बिट बताया गया है, निबल बाइट बताया गया है। बिट क्या होती है? बिट एक बाइनरी डिजिट है जो कि 0 या 1 की वैल्यू हो सकती है, और बाइट जो है वो, और बाइट को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, जैसे लाइक दैट 4 1, जैसे कि 4 0 0 भी हो सकते हैं, 4 0 4, लाइक ये देख सकते हैं बाइट 4 0 4 0 या फिर 4 1 4 1, ये हमारी 8 बिट्स होती हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। उसके बाद निबल को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, इसी तरह निबल जो है वो 1 बाइट का हाफ है। एक बाइट में 8 बिट्स होंगी तो 1 निबल में 4 बिट्स होंगी। इसी तरह वर्ड, we define word that is 1 word is equal to 2 bytes, which means 16 bits. And then
1 kilobyte is equal to 2 raised to power 10 bytes which is 1024 bytes के जो है वो 10 के लिए यूज़ होता है, वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 2 raised to power 10। इस तरह मेगाबाइट जो है वो 2 raised to power 20 बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, और गीगाबाइट जो है 2 raised to power 30, टेराबाइट्स इज 2 raised to power 40। अब हमारे पास आ जाती हैं 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं, रैम और रोम। जो रैम होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी कि अगर कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो अगर कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है तो हमारा जो भी डाटा होगा, जो भी हमने रखा हुआ होगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक और इसको हम ये कहते हैं कि ये रीड एंड राइट मेमोरी है। नेक्स्ट टाइप इज़ रोम विच स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तब भी इसकी मेमोरी रहती है हमारे पास सेफ रहती है। रैम को टेम्पररी स्टोरेज कहते हैं और रोम को परमानेंट स्टोरेज। रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं और रोम को हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। The information in ROM is permanent, cannot be changed by the user, and is not lost when the power is turned off. Therefore, it is called non-volatile memory. Now, there is internal organization of computers. Computers के अंदर 3 parts होते हैं जो उसके main working parts होते हैं internal. That is CPU, main processing central processing unit, memory जिसके अंदर हमारा data store होता है, and input output devices. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम काम वर्क करते हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर, मॉनिटर, माउस, कैमरा, ये सब आ जाते हैं हमारे पास। और मेमोरी हमारे पास रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीडी एंड डीवीडी है। हम कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं अपने कीबोर्ड, माउस के थ्रू, और जो कि जाती है सीपीयू, और सीपीयू जो है वो मेमोरी में डाटा सेव करता है और हमारे पास आउटपुट पे शो जाती है मॉनिटर प्रिंटर। अब मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट है मेमोरी कैपेसिटी। The number of bits that a semiconductor memory chip can store is called chip capacity. एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप जितनी बिट्स जो है वो स्टोर करता है उसको चिप कैपेसिटी कहते हैं। ये किलो बाइट्स में भी हो सकती है, मेगाबाइट्स में भी हो सकती है, गीगाबाइट्स या टेराबाइट में भी हो सकती है। फिर आती है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो है आर ऑर्गेनाइज इनटू नंबर्स ऑफ लोकेशन। एक मेमोरी चिप जो होती है, मेमोरी चिप जो है वो एक आईसी के अंदर लोकेशन पे एक लोकेशन पे जितनी बिट्स वगैरह होती हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं, उसको देखती है। Memory chips are organized into numbers of location within the IC. Each location can hold 1 bit, 4 bits, 8 bits, or even 16 bits, depending how it is designed internally. The number of bits that each location within the memory chip can hold is always equal to the number of data pins on the chip. अगर हमें से पूछा जाए कि इसकी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका एड्रेस क्या है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है, तो हम इस फॉर्मूला के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, जिसमें x जो है वो हमारे 2 रेज़ टू पावर x जो है लोकेशन है और x एड्रेस पिन है, नंबर ऑफ एड्रेस पिन है। इसी तरह जो हमारे पास y है वो नंबर ऑफ डाटा पिन्स हैं चिप पे। तो x हमारे पास एड्रेस पिन्स हैं और y जो है वो नंबर ऑफ डाटा पिन्स हैं। स्पीड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक मेमोरी चिप की,
दैट इज स्पीड, हम कैसे कितनी स्पीड होती है टू एक्सेस द डाटा. द एड्रेस पिन, टू एक्सेस द डाटा द एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द एड्रेस पिन, एक्टिवेट होती है. स्पीड कितने टाइम में डाटा एक्टिवेट हुआ, डाटा लोकेट हुआ, ये सब स्पीड देखती है. फर्स्ट वन डाटा, जैसे कि मेमोरी की दो टाइप्स हैं. इसमें फर्स्ट वन है रोम, रीड ओनली मेमोरी. रोम इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ. जब पावर ऑफ हो जाती है तो वो अपना कंटेंट लूज़ नहीं करती है. इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं. इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, फ्लैश ई पी रोम एंड मास्क रोम. फर्दर इसको एक्सप्लेन किया गया है. पी रोम जो है वो रोम है जो कि इंफॉर्मेशन जिसमें इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, यूज़र जो है उसमें प्रोग्राम करता है, और ये यूज़र प्रोग्रामेबल मेमोरी है. फॉर एवरी बिट ऑफ रोम देयर एग्जिस्ट. पी रोम बेसिकली प्रोग्रामेबल रोम है जो कि यूज़र इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालता है. अब इसमें एग्जांपल दी गई है. अ गिवन मेमोरी चिप हैज़ 12 एड्रेस पिन्स एंड 4 डाटा पिन्स. हमें ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करनी है और इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है. लाइक अबव दिस हियर दिस इज अ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2x इंटू वाई. इस फॉर्मूला का हम यूज़ करते हुए हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन निकालेंगे. लाइक 12 एड्रेस पिन विच इज़ x, 2 raised to power x is 2 raised to power 12, जो कि 4096 हमारे पास आता है, और 4 डाटा पिन जो कि हमारे पास y है. तो 4096 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा. उसके बाद इन्होंने कैपेसिटी पूछी है. कैपेसिटी हमारे पास आती है 16 के. लाइक जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाती है. 16 जो है 16 के इसकी बिट्स हैं, तो टोटल इसकी 4 के लोकेशन और लोकेशन होल्ड 4 बिट्स ऑफ डाटा. नेक्स्ट एग्जांपल है ईपी रोम, दैट इज़ इरेजेबल रोम. जब हमें कोई न्यू डाटा ऐड करना होता है तो हमें प्रीवियस डाटा इरेज करना होता है, तो ईपी रोम इसमें यूज़ होती है. दैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. EPROM was invented to allow making changes in the content of PROM after it is burned. जब प्रोग्रामेबल रोम में कंटेंट चला जाता है तो EPROM इसमें चेंजेस करने के लिए यूज़ होती है. वन कैन प्रोग्राम द मेमोरी चिप एंड इरेज इट 1000 टाइम. इसको 1000 दफ़ा इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इसके अंदर प्रोग्राम भी कर सकते हैं. EPROM की वाइडली यूज़ है UV, दैट इज़ अल्ट्रा वायलेट रोम. इट टेक्स 20 मिनट्स टू इरेज ऑल द कंटेंट. ये सारे जो है वो पिन्स हैं UV रोम की. नाउ देयर इज़ अ वेज टू प्रोग्राम अ UV EPROM. अगर हमें एक अल्ट्रा वायलेट EPROM को प्रोग्राम करना है तो हम इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए प्रोग्राम करेंगे. इट्स कंटेंट्स मस्ट बी इरेज. टू इरेज अ चिप, रिमूव इट फ्रॉम इट्स सॉकेट ऑन द सिस्टम बोर्ड एंड प्लेस इट इन EPROM इरेजर इक्विपमेंट एक्सपोज. इसके लिए वेरियस टेक्निक्स होती हैं रिमूव करने के लिए, तो हम उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए सबसे पहले तो उस सॉकेट से उसको निकालेंगे, उस चिप को, और इसको UV रेडिएशन के सामने एक्सपोज कर देंगे.
जो कि 15 to 20 मिनट्स लगेंगे उस चिप को उसमें से डाटा रिमूव होने में। नाउ अगर हमें उसमें प्रोग्राम करना है तो हम रोम बर्नर के उसके अंदर हम वी विल प्लेस इट इन रोम बर्नर एंड देन वी विल बर्न द कोड। द रोम बर्नर यूजेस 12.5 वोल्ट्स या उससे ज़्यादा भी करता है, ईबी रोम की टाइप डिपेंड करता है। उसको हम वापस सिस्टम बोर्ड में लगा देंगे, इससे वो प्रोग्राम हो जाएगा। Then it is electrically erasable programmable ROM. ये जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है ये 20 मिनट्स, ये इंस्टेंट रिमूवर है, ये 20 मिनट से भी कम टाइम लगाती है और रिमूव कर देती है। EEPROM has several advantages over EEPROM such as EEPROM, such as the fact that its method of erasure is electrical and therefore instant. In addition, in EEPROM, one can select which byte to be erased. हम इसमें हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी बाइट रिमूव करनी है, और जबकि यूवी रोम जो है वो इंटायर रोम को इरेज कर देती है, बट इन ईईपी रोम दैट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसमें हम जिस बाइट को हमने रिमूव करना होता है हम उसको चूज़ करते हैं और हम उसको रिमूव कर देते हैं। एंड देन लास्ट इज़ फ्लैश मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंस्टेंट मेमोरी रिमूवर है। It has become a popular programmable memory chip, and for good reason. First, the erasure of entire content takes less than a second, or might say in a flash, यानी ये नैनो सेकेंड्स लेता है और रिमूव कर देता है मेमोरी। And then it is mask ROM, in which the content are programmed by IC manufacturer. In other words, it is not a user programmable ROM. It cannot be easily programmed by user. इसको सिर्फ IC मैन्युफैक्चरर ही यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। Now it's random access memory. Random access memory is temporary memory. It is called volatile memory. हम अपना सारा डेटा लॉस कर सकते हैं अगर हमारी पावर ऑफ हो जाए। जैसे रोम में था कि उसकी मेमोरी रह जाती है, रैम में नहीं रहती। इसकी 3 टाइप्स हैं: स्टैटिक रैम, नॉन वोलेटाइल रैम एंड डायनामिक रैम। First one is static RAM. Storage cells in static memory are made of flip-flops and therefore do not require refreshing in order to keep their data. इसमें flip-flop यूज़ होते हैं। This is in contrast to dynamic RAM. Discuss the problem with the use of flip-flop for storage cell is that each cell requires at least 6 transistors to build, and the cell holds only 1 bit of data. जब हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं तो इसके एक मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें 6 ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, जबकि एक सेल जो है वो 1 बिट ऑफ डाटा यूज़ होता है। बट नाउ इन रिसेंट ईयर्स द सेल्स हैव बीन मेड ऑफ 4 ट्रांजिस्टर्स, फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। A0 to A10 are address inputs. VWE represent write enable, OE is output enable, CS is chip select, and these are the input output from in pins from 0 to 7. Now this shows how to write data into static RAM. हम data कैसे write कर सकते हैं? These are the steps. First, provide the address to pin A0 to A10. These are the A0 A10. एक डिकोडर लगा हुआ है, इधर हमने एड्रेस प्रोवाइड करना होता है।
Then activate the CS, which is chip select. Now we have to activate CS. This is CS. Then make write enable 0 while read data. जब हम डाटा को रीड कर रहे हों तो राइट इनेबल को हम 0 कर देंगे. प्रोवाइड द डाटा टू पिन्स, इनपुट आउटपुट पिन्स. दिस इज़ इनपुट आउटपुट पिन्स. इसमें डाटा प्रोवाइड करेंगे. फिर हम राइट इनेबल को 1 कर देंगे एंड डाटा विल बी रिटर्न इन स्टैटिक रैम ऑन द पॉजिटिव एज ऑफ राइट इनेबल सिग्नल. Then it is non-volatile memory, whereas static RAM was volatile memory, but this is non-volatile memory. Like other RAMs, it allows the CPU to read and write to it, but when the power is turned off, the content are not lost. In this RAM, जैसे कि बाकी रैम्स में है कि जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है या पावर ऑफ हो जाती है तो डाटा हमारा चला जाता है, इसी तरह इसमें इस तरह नहीं है, इसमें डाटा रहता है. जो नॉन वोलेटाइल रैम है ये डाटा ये कंबाइन करता है रैम और रोम को. रीड एंड राइट एबिलिटी ऑफ रैम प्लस द नॉन वोलेटिलिटी ऑफ रोम टू रिटेन इट्स कंटेंट. ये पावर एफिशिएंट स्टैटिक रैम सेल्स यूज़ करता है. इंटरनल लिथियम बैटरी यूज़ करता है. इंटेलिजेंट कंट्रोल सर्किटरी यूज़ करता है. दिस मेक्स it non-volatile memory. Then this is the chart. Last one is dynamic RAM. Since the early days of computer, the need for huge, inexpensive read and write memory has been a major preoccupation of computer designers. Its density was 1024 bits and it used a capacitor to store each bit. Dynamic RAM जो है वो कैपेसिटर यूज़ करता है each bit को स्टोर करने में. Using a capacitor to store data cuts down the number of transistors needed to build a cell. ये ट्रांजिस्टर्स की नीड को कम करके कैपेसिटर्स जो है वो डाटा स्टोर करता है. It requires constant refreshing due to leakage. This is in contrast to static RAM, whose individual cells are made of flip-flops. Since each bit in static RAM uses a single flip-flop and each flip-flop requires 6 transistors, static RAM has much larger memory of cells and consequently lower density. The use of capacitors as storage cells in dynamic RAM results in much smaller net memory cell size. डायनेमिक रैम के एडवांटेजेस ये हैं कि इसकी हाई डेंसिटी कैपेसिटी होती है, चीपर कॉस्ट है और लोअर पावर कंजप्शन है. बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको बार बार रिफ्रेश किया जाता है क्योंकि कैपेसिटर जो है वो अपना चार्ज लूज़ कर देता है. दिस इज़ द इंटरनल व्यू ऑफ dynamic RAM. This is the enable pin. 2 latches are used. This is data pin and this is the memory. So these were the types of RAM and ROM memories. These were the basic intro of how computer works. This was the start how memory works and what are the types of memories. This is enough for today. Thank you.